Hello. So, how many of you have decided to speak today? कि सबके सब चुप रहने वाले हो? So me, Okay, you have decided. Good. चलो चलो किसी फॉर्मल की बजाय इनफॉर्मल चीज़ों से शुरुआत करते हैं जस्ट टू वार्म अप पीपल. मिर्जापुर सीरीज किसने किसने देखी थी और मैंने किसने इसका देखी थी ट्रेलर कल। देखा? ओके, ट्रेलर देखा? हाँ, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? गुड्डू भैया राज करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक हीरो जीते हैं, हम जोकर नहीं बनाते ना. ओके, अभी सिर्फ 9 लोग हैं इंक्लूडिंग मी. अगर कुछ और लोग ज्वाइन करने वाले हैं तो उन्हें बोल दो, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट. लाइक 5:10 पे हम स्टार्ट कर देंगे. और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आई थिंक ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट सेशन होगा. तो उसके बाद फिर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखेंगे. तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आज के बाद बेसिक जावास्क्रिप्ट में कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि जब हम एक बार लेक्सिकल स्कोपिंग प्रोटोटाइपिंग में घुस जाएंगे ना, तो वी विल नॉट कम बैक. देयर आर वेरी अमेजिंग टॉपिक्स लेफ्ट, तो हम उनको कवर करना चाहेंगे. जिस व्यक्ति को कॉल करें चलो लेट्स बिगिन. So yesterday we stopped the session on this problem, right? It was giving some issue. So today let's start from here only. This was issue, right? ये ऐसा क्यों आ रहा था? This was the issue and we could not solve it. So anyone has any idea or should I just go with? And please use your +1 भर के, because now I can see you guys better. I mean, read your chats better. In Google Meet it was challenge. So does anyone have any idea why this section got printed and what is this? No? -1 भी यूज कर सकते हो तुम सब. Yes, okay. Cool. So what we did here, if you see here, okay, let me remove this array prototype, something of this sort. Okay, not people, it's, this is not important. People, we added a property to this object. So just one thing, that in JavaScript everything is object, right? So this array is an object of type array. Means someone would have instantiated an array class. array class होगी जिसको instantiate किया गया है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे और हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, न्यू array. जैसे जिन्होंने जावा किया होगा उन्हें पता होगा, right? Not this, I think comma works, doesn't need that, maybe. Let me check. I am not familiar with this much because I don't use. Yeah, it is working same. So this, so internally JavaScript does what? It has given you a sugar coating on your syntax. तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सुगर कोटिंग क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सिंटैक्टिकल सुगर कोटिंग. बोलते हैं क्यों? आपको ना कुछ सुगर कोटिंग दे दी है, तो इन जनरल सुगर कोटिंग मीन्स कि आपका काम आसान कर दिया गया है कुछ कुछ चीज बना के.
तो आप अब न्यू एरे लिखने की फजीहत से बच के व्हाट यू कैन इजीली डू इज just write this square bracket and JavaScript will instantiate array class for you, and this will be an object of array class. So array is an object of maybe class array, right? Yeah, let me be any array. Any array is an object of a class array. There people is an object but of class array. और ठीक है, तो eventually everything is object. अभी that's why what we could do, we can use dot operator. So obviously in JavaScript, if you can do this dot operator, it means that the left part of dot operator is an object. That is clear, right? So that is why you can add one more attribute to this object. So the why this code was working, but it was also giving some extra thing. The reason was because initially it had only three things, right? But we added one more, which is my app. So now see, till here it is fine, right? Till here, let me just comment out this section so that it is more clear. Till here, it was printing the person, which is name of the person, and the index. In the same way, for in loop क्या करता है, आपको ऑब्जेक्ट की attributes पे iterate करता है, right? It iterates over the attributes of an object. It doesn't see whether that is a custom attribute or not. मतलब वो late आपने बाद में add किया है नहीं add किया है, it doesn't really matter to this. That is why this section जिसका index था my map और जिस पे value थी ये function, right? ये एक और बार iterate कर दिया. तो ये for in loop का behavior है कि वो custom property आपने जो add की है उसको भी एक एट्रीब्यूट ही कंसिडर करता है, राइट? तो इस चीज से बचने के लिए मतलब द इशू इज बिकॉज ऑफ दैट फॉरेन लूप. टू बी सेफ फ्रॉम दिस इशू व्हाट यू कैन डू इज द सॉल्यूशन वन, यूज हैज ऑन प्रॉपर्टी. व्हाट इट डज इसको हम देखते हैं. And solution 2, we can use for a loop. So let's solve that problem with this solution. So I'm using solution 1 where has own property. ये JavaScript आपको तरीका देता है which you can use to detect whether that attribute has been added later or it was initial attribute. So what does this mean by added later? Here earlier it was only 3, now we added one extra, right? So we can if we are willing to use for in loop, what we need to do is we will have to check whether that is not uh, I mean whether that key, that index, I mean this 0, if you see this 0 1 2, this is internal index, is not a custom index, has own property. जिसका हिंदी मतलब क्या होगा कि खुद की प्रॉपर्टी है कि नहीं. देखो 0 1 2 हमने नहीं ऐड किया, ये ये इंटरनली ऐड हो गया, तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी थी. लेकिन माई मैप हमने ऐड किया तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है. तो इस अगर सोल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक इफ चेक डाल सकते हैं और हमारा जो ये एरे है दिस, उस पर हम चेक कर सकते हैं. अभी ये कंफ्यूज मत होना कि ये दिस को क्यों कर रखा है हमने, वो हम डिस्कस करेंगे कि दिस कैसे काम करता है, राइट? जस्ट अ मिनट. Cool. So here it requires the key, and this can tell you whether this is your property or not. Let's see. Okay.
again. Okay. I think there is some issue with the implementation still. This is a very important. Okay, this array takes the array and then this. I think it should work. What have we been missing? This dot has own property. Mm-hmm. Oh, I think we need to add it in the prototype. I'll discuss what prototype is. Yeah. So ignore this term for now. Why we did this? We'll discuss it in detail. Okay. So now you can see you can ignore that custom property which we added later, which was my map, and we can do this. Or what you can do, just do not use this solution. Just come with this solution. This was the solution first, right? Here is I see another thing. So where we added to the prototype and then we just checked it with hash own property, जिससे पता चलता है कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है नहीं. नेक्स्ट जब हम सोल्यूशन 2 कर सकते हैं इसका कि लेट्स नॉट यूज द फॉर इन लूप, यूज फॉर लूप वेयर वी कैन इटरेट with the help of length, right? So for loop में length को use करके करने वाले हैं. Copy the solution, comment it out, and then let's call it here. Okay. So for key, let's say we start from 0 and then key less than this dot length. अब यहाँ this किसको point कर रहा है? अभी के लिए बस इतना समझो ये this ये array है, right? तो people dot length कर रहे हो तुम और कुछ नहीं. तो this dot length and then key plus plus. Now थोड़ा सा maybe अगर difficult हो please ask question. I know it's becoming a bit complicated. As soon as we have started the advanced JavaScript, जैसे भी हम slightly move करेंगे उधर थोड़ी चीजें complex होंगी. तो please be patient and try to understand the crux of it. Okay, so now we don't need this hash own property and these things. Just yeah, I think it's good. Yeah. Okay, so yeah, good. Let me see. Right. So this is how it is. Now you can implement like this also. This is the solution too. Okay. So any question here? कैसे ये काम किया? Why it was not working yesterday? Just to answer why it was not working yesterday, because we were using for in loop, and for in loop iterates through all the attributes, right? जैसे ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है इसके ऊपर, ये Stack Overflow बड़े अच्छा पोस्ट है. You can see how many of posts it got. So either just avoided by has own property, or what you can do is just use this way also. You can also do this. Define property में उसकी enumerability को false कर दो. Enumerable मतलब होता है, enumerable का मतलब literal meaning होता है जिसे आप count कर सको, right? Enumerate कर सको. तो if you said enumerability as false, so that cannot be iterated over, right? So इस तरीके से हम कर सकते हैं. Any question so far? प्रोटोटाइप बता दीजिए आप. Anyone got any question? Okay, sir. प्रोटोटाइप में नहीं चलते. प्रोटोटाइप के लिए एक पूरा का पूरा सेशन है. बस इतना समझ लो जावास्क्रिप्ट जो है उसका इनहेरिटेंस कैसे काम करता है.
हमने ये एरे क्लास में चीज डाली। एरे मैंने बताया ना, एरे एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनता है। एरे क्लास के प्रोटोटाइप में चीज डाली जो कि हमारा माई मैप है, और हमको वो पीपल में मिल गया, क्योंकि पीपल इज एन इंस्टेंस ऑफ एरे। तो अगर तुम्हें ये चीज चेक करनी हो कि, तो एक मैं छोटा सा आपको वो बताता हूँ, ये क्या है, इंस्टेंस ऑफ, check whether the given object is an instance of a class। ये बताता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्लास है, अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मैं उसे इंस्टेंशिएट करते हो, इंस्टेंस बनाते हो उसका। तो अगर इंस्टेंशिएट करोगे तो क्या वो उसी क्लास का इंस्टेंस है, ये कैसे पता चलेगा? पीपल इंस्टेंस ऑफ अरे, ठीक है, सी ट्रू। अगर इसको ऑब्जेक्ट कर दो, या अच्छा इंटरनली इट इज, इसको नंबर करके देखो, ठीक है। सिंस एरे, अब ये कैसे हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट भी लिखा और एरे, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ये कैसे, जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप ऐसा समझो कि एक ना सर्च होता है कि अगर मेरे पेरेंट में ना मिले तो वो उसके पेरेंट में खोजता है थ्रू द प्रोटोटिपिकल चेन, ठीक है। तो अभी लेट्स नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि वो अभी थोड़ा वो एडवांस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे, प्रोबेबली चैप्टर 3 चैप्टर 4 में। अभी लेट्स फोकस ओनली ऑन व्हाट इज लाइक द मोस्ट बेसिक स्टफ्स व्हिच यू कैन स्टार्ट विद इन जावास्क्रिप्ट, ओके। ओके, हैज ओन प्रॉपर्टी टेल्स कि ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर है तो ही हमारा कोड चलता है विशाल। अगर वो खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे माई मैप उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, राइट, तो क्योंकि जो 0 1 2 था वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी था, हमने एरे बनाया तो वो एरे एक 0 1 2 की पे स्टोर हो जाता है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से हैश ओन प्रॉपर्टी उनके लिए ट्रू होगा, दिस मेथड विल रिटर्न ट्रू, तो हमारा ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा। लेकिन जब माई मैप वाले के लिए आएगा, मैंने क्या बोला कि जब फॉर इन लूप है वो सारे के लिए चलता है, तो ऐसा समझ लो कुछ ऐसा था, ये ऐसे हमने जो माई मैप बनाया ना वो ऐसे है, राइट। अब इसके लिए भी ये चल रहा है, ओके। तो हमको इसके लिए नहीं चलाना है, तो और ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, मैं कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये तो हमेशा कंसोल में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो, जस्ट गो टू कंसोल, ठीक है। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, ओके। आई थिंक ये ऐसे काम करेगा यहीं से ना, हाँ ठीक है, इट इज वर्किंग फाइन। पीपल रहेगा ना, देखो हमने पीपल प्रिंट किया ना, तो पीपल में ये 3 ही प्रॉपर्टी है, तो इसकी लेंथ हमेशा 3 है, क्योंकि ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज है, ये इसके प्रोटोटाइप मेथड्स नहीं है। तो जो हम प्रोटोटाइप में डालते हैं वो इसके अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो में मिल जाता है। इनके में क्या डिफरेंस है वो मैं समझाऊंगा। प्रोटोटाइप एक्चुअली उस क्लास पे होता है, प्रोटो उसकी इंस्टेंस पे होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है तो तुम जब ये हम डिटेल में समझेंगे। देखो जब प्रोटो को खोलोगे ना, तो देखो मैंने क्या बताया, कैसे ये मेथड्स मिलते हैं प्रोटो में, चेक कर लो, कॉनकैट फ्लैट ये सब तो पहले से थे, इसमें तो मैप भी कहीं होगा, ये मैप था, लेकिन हमने उसके करस्पॉन्डिंग माई मैप रख दिया, ये इसके नेटिव इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और ये माई मैप जो है ये हमारा कस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो माई मैप कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम फॉरिन लूप यूज करेंगे, व्हाट विल हैपन कि इन 3 के अलावा माई मैप को भी कंसिडर कर लेगा, क्योंकि तुमने उसी ऑब्जेक्ट में डाल रखा है उसको, ठीक है। पीपल डॉट माई मैप, लाइक तुमने उसके ऑब्जेक्ट में डाला है। तो अगर तुम उसे चेक कर लो हैज ओन प्रॉपर्टी,
तो वो उसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी कस्टम प्रॉपर्टी है। इसके जिसका 0 1 2, ये देखो ये भी की वैल्यू पेयर होता है ना, तो 0 इज अ की, राम इज वैल्यू। 0 1 2 पे वैल्यूज हैं, तो ये 0 1 2 इसने खुद डाला है, तो इसकी ओन प्रॉपर्टी है, मतलब खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन माई मैप जो है ये हमारी कस्टम प्रॉपर्टी है, ये हमने डाला है। तो हम यहाँ पे हमको लूप किस पे चलाना है? सिर्फ और सिर्फ कस्टम प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी पे, ना कि कस्टम प्रॉपर्टी पे। तो ये इसलिए हमने इसको चेक कर लिया। तो ये एक वर्क अराउंड है। अगर उससे बचना है तो अब देखो लेंथ जो है, लेंथ 3, यूज दिस लेंथ 3, ये हमेशा बिल्कुल सही जवाब देगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर लूप चलाना आता ही है, आप जस्ट की को लो और लूप चला दो लेंथ तक। तो दिस डॉट लेंथ इज द लेंथ ऑफ द एरे, क्योंकि दिस किसको पॉइंट कर रहा है इस समय? पीपल को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो पीपल में वैल्यू है वो दिस में वैल्यू है, राइट। और हम 0 से लेके इस लेंथ तक लूप चला दिया, उसके बाद हमने उस लूप से कर दिया। अभी इस मिस्ट्री को हम समझते हैं कि कॉल बैक कैसे काम करता है। यहां तक चीजें क्लियर है? आई नीड ऑल 9 folks टू गिव +1 बिकॉज केवल हम 9 ही बचे हैं, एंड एटलीस्ट वीच 9 शुड बी देयर। आई गॉट 5 ओनली। 6 7 7 8, still one missing. Atul, you didn't get it? अतुल तुम्हें समझ नहीं आया ये? श्वेता गिवन 3 + 1, सो आई थिंक उसको सबसे अच्छा समझ में आया। ओके, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन और वी कैन मूव अहेड? अभी शिवांश, अतुल, प्रीति। सर ये जो डॉट लेंथ है, हम्म, तो ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये दिस का मतलब दिस पॉइंट कर रहा है करंट एरे को। हम्म, तो सर डॉट लेंथ की मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बस इसे हम डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हैं, या ये कोई फंक्शन टाइप है कि फंक्शन कॉल हो रहा है फिर कैलकुलेट हो रहा है? जैसे और सब लैंग्वेज में हम करते क्या है कि डॉट लेंथ एक फंक्शन की तरह होता है, उसे हम कॉल करते हैं तब वो वैल्यू रिटर्न करता है। नहीं नहीं, ये वेरी वेल पॉइंटेड आउट, आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये जो डॉट लेंथ है ना, दिस इज नॉट अ मेथड कि आप कॉल करोगे तब वो एक एक्चुअली इंटरनली कैलकुलेट करेगा और तब बताएगा। ये जावास्क्रिप्ट आपके लिए केक देता है, मैंने बोला ना शुगर कोटिंग, तो जावास्क्रिप्ट बहुत काम आपको शुगर कोट करके देता है। तो जैसे ही आप एरे में चीजें डालते जाएंगे ना, ये लेंथ बढ़ता जाएगा। देखो अगर मैं एरे में पुश करता हूँ कुछ, लेट्स से मैंने मोहन पुश कर दिया, राइट। सी अभी देखो इसने बाय डिफॉल्ट जैसे ही पुश किया इसने लेंथ रिटर्न भी की। तो यस सर। पीपल डॉट लेंथ सी, एंड पीपल अगर मैं प्रिंट करूं, सी लेंथ इज 4। सो ये जावास्क्रिप्ट की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। कि जैसे ही आपने ये मेथड पुश पुल कॉल किया, या जैसे ही आपने इसके इंडेक्स को बढ़ाया, नॉट इवन पुश, आप ऐसे, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस विल गिव एन एरर? नॉट दिस। जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं बोलेंगे। कोई हमारी इसमें, हाँ अतुल इज हियर, अतुल। मैं अगर ये एंटर करता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट विल गिव एन एरर? एंड इफ इट डजंट गिव एन एरर, व्हाट इट विल डू? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो हम मेन टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साइड बाय साइड ये जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना, वी विल आल्सो कवर दैट, सो दैट ये हमें एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये ना ऐसे तो तुम इसे गूगल नहीं कर सकते। हाउ वुड यू गूगल दिस कि मैं एक एरे में 9th इंडेक्स पे कुछ डालूं तो वो एरर देगा या नहीं देगा? तो ये ना ये स्टडी और एक्सपीरियंस से ही आता है। आप कभी बाई मिस्टेकली कर दोगे इसे, एंड देन यू विल रियलाइज कि इसका आउटपुट क्या है। सर जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है वो मतलब
लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसमें हम लेंथ को पहले से डिफाइन ही करते हैं। तो सर यहाँ पे अगर हम इंडेक्स 9 पे अगर अतुल को कर रहे हैं तो ये जाके वहाँ पे स्टोर होगा, लेकिन हम किसी और लैंग्वेज में करते तो इंडेक्स एरे आउट ऑफ बाउंड एरर सर आता। 9th वाले पे मतलब 8th वाले पोजीशन पे ये Okay. अतुल चला जाएगा, बट बाकी जो रहेंगे Anyone उसके wants पहले to वाले add 5th anything? 6th 7th वाले तो एम्प्टी रहेंगे वो। हम्म तो देखो, चलो मैंने इसको कंसीडर कर लो। हमारा ये एरे है, मान लो जावास्क्रिप्ट में ये चार था ना, और ये इसका ऐसा समझ लो, जस्ट विजुअलाइज कि एरे कैसे काम करता होगा, राइट। ये 0 था, ये 1, ये उसके इंडेक्स थे, राइट। और इस पे इनकी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, ऑल्दो डजंट मैटर, बट राम, सुनील, प्रीति एंड मोहन। ओके, इससे तुम्हें मेमोरी एलोकेशन समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। बट एक पॉइंट अभी ने बहुत सही बोला कि लूजली टाइप लैंग्वेज है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर लेट्स से ये एरे है, ठीक है, जो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होती हैं उसमें आपको एरे का लेंथ डिक्लेरेशन के टाइम पे बताना होता है, रन टाइम पे आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो उतनी मेमोरी आपके यहाँ फिक्स हो गई। जैसे मेमोरी के लेट्स से ये चार चार स्लॉट मेमोरी के आपको फिक्स कर दिए गए, राइट। अब आप रन टाइम में पांचवा उसमें एलिमेंट नहीं डाल सकते, चार से कम आप चाहे जितना रखो, बट यू कैन नॉट ऐड द फिफ्थ एलिमेंट। बट इन सच लूजली टाइप लैंग्वेज इट इज ऑलवेज पॉसिबल। But again, you can do that. You can add the ninth element, which will come on the index 4, 5, 6, 7, right? 4, 5, 6, 7, and 8. 8, not 9. Because 0 से शुरू हुआ, right? This is the ninth element. That's fine. Now tell me, ninth element तो आ गया आपने यहाँ पे, let's say you added Atul. What about these यस places? सर। मेमोरी में क्या इनकी जगह बनती है कि नहीं बनती है? सो बनती है। किससे? तुमसे तुम्हारे दोस्त की बनती है? ओके, चलो कोई और आंसर करेगा, जगह बनती है कि नहीं बनती है, मतलब डज दीज प्लेसेस गेट अ मेमोरी एलोकेशन और नॉट? Sir, it takes space allocation. ओके, सर एरे जो होता है वो एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो एक सीक्वेंस में मेमोरी बनती है। आंसर इज यस, जगह बनती है, नल बट उनकी वैल्यू क्या होगी? अगर नल जगह होगी बनी तो वैल्यू भी तो होगी। सर अनडिफाइंड। क्योंकि रॉन्ग। उसमें है नेक्स्ट। ही नहीं ना वो कुछ भी, हाँ, मतलब एक नोड है ओके, दूसरा नोड नहीं है। व्हाई डू यू थिंक नल होगी? चलो, हमने यहाँ पे पॉज ब्रेक लिया था, और हमने पॉज ब्रेक में क्या डिस्कस किया कि what about if you add mth, yeah, mth value in array which is of size m minus 5, right? इसका मतलब समझ में आया ना कि मैंने किसी में 6th एलिमेंट डाला, उसकी साइज 1 थी, 6 minus 1, राइट। हाउ इट विल बिहेव इन दिस सिनेरियो, मैंने 5 की जगह मुझे यस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इस सिनेरियो में इस क्वेश्चन, मतलब आई एम जस्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन सो दैट आई कैन लेटर ऐड इट ऑन समवेयर, आई विल टेल व्हाट दैट समवेयर इज। अभी फर्स्ट, इट विल नॉट go in error, and what is the reason? Loosely typed language. एक सिंपल सा reason. It
will allocate memory for intermediate indexes. To be more precise, let's call it indices. Sorry, indices. What will be the value of those indices? अभी तक किसी ने सोचा नहीं. Answer is Abhi was right. Undefined. So undefined versus null. ये अभी सब भूल चुके. Again I would say देखो null and undefined क्या है? जब कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को नहीं देते हैं तो प्रोग्रामेटिकली उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है. नल डेवलपर मतलब इंटरप्रेटर उसको वैल्यू अनडिफाइंड असाइन कर देता है. जब भी कोई किसी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो उसकी वैल्यू इंटरप्रेटर हमेशा अनडिफाइंड ही डालेगा. ये दैट इज द ओनली लाइन. इफ यू हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू, वी हैव नॉट डन एनी असाइनमेंट, that variable would get undefined, and that is patthar ki lakeer. It is not going to change. What is null then? Null is a developer's choice value. मतलब it is up to developer whether that person wants to add a null value or not. क्योंकि undefined doesn't sound good. अगर आपने कहीं undefined डाल दिया तो आपको रन टाइम में एक्सेप्शन आ सकता है. null पे एक्सेप्शन नहीं आएगा. आपको पता है. तो लेट्स से ए की ए वैल्यू है, उसको आपने अनडिफाइंड असाइन किया और आपने ए यूज कर लिया कहीं, तो वो फट जाएगा कोड आपका. दैट कोड विल ब्रेक. बट ए की वैल्यू अगर नल है तो दैट कोड विल नॉट ब्रेक. सो दैट इज द मेन डिफरेंस. अनडिफाइंड वर्सेस नल एकदम अच्छे से समझ लो. दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अभी लेट्स सी व्हाट इट हैपेंस. नाउ प्रिंट पीपल. देखो इसने empty cross 5 कर दिया, but these values are undefined. How would you get them? If people मुझे 0 1 2 3 पे था, 4 get करो. The value is undefined, not null. It is not null, it is undefined. Yes, So sir. these values are empty. So that's why the interpreter assigned the value of undefined. Is it clear now? No plus ones. Still 100% लोगों को clear होना चाहिए. Like we are only 10 people. Yeah, just like it's just a 30-second job to give the plus one so that I can go ahead. मैं अपने वीकेंड की इवनिंग खराब कर रहा हूँ और तुम लोग कुछ नहीं सीख रहे. Cool. हाँ, तो ये पॉज ब्रेक खत्म करते हैं. लेट्स रिज्यूम द इनिशियल कॉन्वर्सेशन. वो क्या था कि इंस्टेंस ऑफ भी सीखा आपने. इंस्टेंस ऑफ क्या था? इट इज आल्सो पॉज ब्रेक. इंस्टेंस ऑफ पता चल गया ना. इंस्टेंस ऑफ वी कैन यूज टू टेल वेदर इट this object is an instance of this class. ठीक है. अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता, let's see what happens. Okay, I think ये वैल्यू वेरिएबल में डालना पड़ेगा तभी, अदरवाइज ये 3 ऐसे नहीं जस्टिफिएबल होगा इसके लिए. I thought it would. Okay, so instance of is fine, and now I think people have understood how the solution works. So we can go ahead to understand what is callback, what is optional argument, these two important things, right? तो जब आप मैप फंक्शन आपने ये लिखा, मैप फंक्शन का आपने ये कस्टम इम्प्लीमेंटेशन लिखी, इसमें आपका ये जो की है ना, दिस की इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट. दैट पर्सन मे और मे नॉट गिव यू यूज दिस की, राइट? अभी हम पहले ऑप्शनल आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं. The optional arg in a function can be avoided. कैसे? फिर से एक टेस्ट फंक्शन लिखता हूँ मैं. हाँ,
Get full name. जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मिडिल नेम को ऑप्शनल करने के लिए। बहुत से लोगों का मिडिल नेम नहीं होता, ठीक है। वी आर गोना रिटर्न फर्स्ट नेम concatenation some space last name middle name space last name। अब लेट्स से अगर हम गेट फुल नेम करते हैं, व्हाट हैपेंस, Ashok is the, because for my system first and last name is important, that's why I've asked only first and last name. Middle name may or may not be there, let's say Kumar, एक बंदे का ये नाम है, दूसरे बंदे का let's say this girl was Rashmi Mishra। ठीक है, till then हम इस इन सारे फंक्शंस को यहाँ के लिए just comment it out so that they don't run, okay। How many of you think this will give an error? Kriti, do you think this will give an error? No, sir. Not wrong. Okay, Abhi, will it give an error? It will give nothing, क्योंकि इसको सर हम लोगों ने कंसोल ही नहीं किया, रिटर्न किया बस। यार भावुक हो जा रहे हो लोग। Okay, ठीक है, अभी बताओ, will it, I mean the main question is about will it give an error or not? नो सर नहीं देगा। सर फर्स्ट वाला रन करेगा, सेकंड वाले में एक आर्गुमेंट मिसिंग है। हाँ, तो will it give throw an error or not? चलो let's not waste time, no? तो it will not give an error। आर्गुमेंट के साथ सीन ये है कि वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाते हैं। देखो अभी रश्मि अनडिफाइंड मिश्रा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑप्शनल आर्गुमेंट बना सकते हैं, राइट। ऑप्शनल आर्गुमेंट कैसे बनाएंगे, इसकी वैल्यू ऐसे करके, ठीक है। अब ये अनडिफाइंड से चेंज हो जाएगा, देखो सिंस, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम थोड़ा रीफैक्टर करते हैं। तो रीफैक्टरिंग क्या होती है, रीफैक्टर जो टर्म है, इट मींस आप कोड को चेंज कर रहे हैं सो दैट इट वर्क्स। इसके आउट मतलब आप इसमें कुछ चीजें फिक्स कर रहे हैं, तो हम इस कोड को रीफैक्टर करते हैं। हम यहाँ पे अभी रीफैक्टरिंग के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। First name, we got the first name, and then if the first name is there, sorry, the middle name is there, then only do this, else do nothing. Okay. Oops. What happened? Oh, okay. हाँ, इसमें एक बहुत important point I think होने वाला है। देखो इसमें कई चीजें हैं। पहला क्या है, Parenthesis। हम दो और दरवाजे खुले, एक तो टर्नरी ऑपरेटर, दूसरा why we had to use that parenthesis, why it got so difficult spelling, parenthesis, I guess this one, yes. Yes, sir।
ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर सबको पता है क्या होता है? व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? अपार्ट फ्रॉम यू, -1, कूल, ठीक है, नो वरीज, विशाल डजंट नो, हु एल्स डजंट नो? जो नहीं जानते, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर इज अ बेसिक थिंग, बट हमें उन्हें डिस्कस करना चाहिए. एंड व्हाट आर अदर ऑप्शंस हियर अपार्ट फ्रॉम टर्नरी ऑपरेटर? सबको पता है? श्वेता, डू यू नो व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? Okay, so at least say -1 if you don't know. Yeah. Okay, so ternary operator is a you can say it is a conditional expression which we for simple conditions थोड़ा सा इनफॉर्मल लिखते हैं. तो इसमें क्या होता है कि so this is how it is, result equals to, मतलब जो लेफ्ट में वो रिजल्ट है, expression, right, and then this question mark. If this expression is true, first run me if, sorry, not run me, it's return me. Return me if expression is, सर ये if की तरह होता है. sorry, सर ये टर्नरी ऑपरेटर if else की तरह, हाँ, ये if else exactly वही का होता है. शॉर्ट हैंड है. हाँ, मैं वही लिखने वाला था. We can also call this, ये हर ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, कब जहां आपको छोटे छोटे लिखने होते हैं, दिस ऑपरेटर एज शॉर्ट हैंड इफ एल्स. ठीक है, जहां पे सिंपल इफ एल्सेस हो वहां पे हम यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू है, चेक इफ एक्सप्रेशन इज, चेक एक्सप्रेशन वैल्यू. ठीक है, अगर ये ट्रू है देन रिटर्न मी एंड एल्स रिटर्न दिस. तो ये रिजल्ट की वैल्यू यही होगी. मैं बोल रहा ऐसा कि ठीक है, वहाँ पे एक बार लगा के देखो अब देखो, क्या आता है. ये तो हो गया टर्नरी ऑपरेटर, पहला क्वेश्चन. क्यों उल्टा कर दिया क्या मैंने? अच्छा, तो उलट जाएगा सिंस देखो, अब इसमें नहीं, अशोक कुमार यादव का रिजल्ट देखना तुम सब, उलट गया. तो नॉट लगा दिया तो ये जो इक्वेशन थी वो उलट गई. ऑब्वियसली जो एक्सप्रेशन ट्रू था वो फॉल्स हो गया. तो जो ये फॉल्स हो गया, तो जहां पे ये ट्रू था, मतलब ये चल रहा था, वहां पे ये चलने लग गया, ये रिटर्न करने लग गया. सॉरी, दिस वन. ये हमने यहाँ पे क्या किया, कंकैटिनेट किया है फॉर बेटर रीडिंग रीडेबिलिटी. यहाँ के ऊपर जो स्पेस आ रहा है ना, वो कंकैटिनेशन है. ये जो स्पेस है, ये लाइन, अगर हम ये नहीं देंगे तो रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी. मतलब अशोक कुमार यादव बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के आएंगे, विच वी डू नॉट वांट. ठीक है, अब हम टर्नरी ऑपरेटर को हम एक इफ एल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज दी लॉजिकल ऑपरेटर्स इन प्लेस ऑफ दिस. ठीक है, इसका भी एक शॉर्ट हैंड है. अगर मैं इस कोड को, पहले तो मैं इसको यूजिंग एफ एल्स लिखता हूँ, तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा जिनको नहीं पता कैसे लिखते हैं. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास. मिडिल नेम इज देयर, देन डू व्हाट. तो पहले जो तुम्हारा फर्स्ट नेम है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फुल नेम का, क्योंकि अब मैं उसके अंदर लेन चाहिए. मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया, राइट. फर्स्ट नेम की जगह अगर मिडिल नेम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस इक्वल टू फुल नेम में कंकैटिनेट कर रहा हूँ. सी,
यहाँ पे मैंने अथो, इसका तरीका ये भी होता है, जैसे तुम देख रहे हो ना इक्वल टू फुल नेम, इसका शॉर्ट हैंड क्या होता है कि ये लिखने की जगह प्लस इक्वल कर दो, ठीक है, ये शॉर्ट हैंड है इसका। तो अभी शॉर्ट हैंड पे चलते हैं, ठीक है। फुल नेम डाला, यहाँ तक अब मुझे क्या मिल चुका है, यहाँ तक मुझे फुल नेम में वो आ चुका है बस। ये भी एक वही सेम तरीका है, ठीक है। यहाँ मैं कंसोल कर देता हूँ। Yes, sir. यूजिंग इफ एल्स, ये दोनों सेम रिजल्ट है, ओके। ये क्लियर कर लेते हैं, फिर रन करते हैं, ये हटा भी देते हैं, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, अभी ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन राइट। अगर मैं इसको वो करूं, लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक कूल डेवलपर बनाती है, बिकॉज यू कैन यूज आई मीन राइट जस्ट लेस कोड एंड थिंग्स विल वर्क एज इज, उससे भी छोटा हो जाएगा। सी मैंने ये किया, सी what I can easily do here is I can just AND it and things will work. बस इसमें थोड़ा स्कोपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सर अगर कोई यूनरी ऑपरेटर यूज करें तो? इज इट क्लियर टिल नाउ सर अगर एवरीवन? यूनरी ऑपरेटर यूज करें अब तो 9 ही बचे हो, यूनरी में कोई होता है एटलीस्ट एंड 9 टाइप प्लस का? तो 1 तो आनी चाहिए। Am I audible properly? यस सर, लेफ्ट वाला भी ट्रू होगा और राइट वाला भी I ट्रू think it's होगा the use of unary operator is not this one, वो थोड़ा अलग ऑपरेटर है। ये एंड ऑपरेटर, ये जो है ना, ये इस तरीके से काम करती है, देखो तभी होगा राइट। इसका ये शॉर्ट हैंड है कि ऐसे लिख, और ये जो लेफ्ट वाला जो ट्रू होता है, राइट वाला जो ट्रू होगा, तो ये राइट वाला जो बचता है ना, ये प्रिंट हो जाता है। तो इस वजह से ये काम करता है, मतलब ये काइंड ऑफ एक वर्कअराउंड है, बट ये बहुत ही बेहतरीन वर्कअराउंड है, ठीक है। ओके, ओके, सो ये टर्नरी ऑपरेटर था एंड वी लर्नड इट राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, बट ये मतलब ये आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो तुम इफ एल्स से लिख दोगे। लेकिन तो इफ एल्स में कितना झंझट हुआ राइट, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ा क्योंकि हमें मिडिल नेम बीच में डालना है और फिर हमें चेक करना पड़ा, तो ये थोड़ा झंझटी काम है। Apart from that, what else was planned for today? Let me just quickly check. As one property we discussed, optional argument we discussed, custom implementation of map we did it, callback and anonymous function. Anonymous function तो clear है ना सबको, we discussed it yesterday right, कि जिस फंक्शन का कोई नाम ना दे। किसी ने ये नोटिस किया कि हमने इसी स्क्रिप्ट के अंदर गेट फुल नेम मल्टीपल बार डिफाइन कर दिया, मतलब उस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को करते तो देता है ना, और इसने कोई एरर नहीं दिया। सॉरी, हाँ तो मैंने ओवरराइड तो कर दिया, नहीं ओके, सो लेट्स से मैंने इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ही चेंज, अभी यहाँ पे नॉट लगाया था, तो ये थोड़ा गलत आउटपुट दे रहा था, लेकिन तुमने ये चीज नोटिस की कि अब सब सही आउटपुट दे रहे हैं, और चाहे यूजिंग इफ एल्स देख लो, चाहे लॉजिकल ऑपरेटर देख लो, सब सही आउटपुट दे रहे हैं। ऐसा क्यों? yes. अगर मैं ये कमेंट कर दूं वो
वो फोर्स कर दे रहा है ये नीचे जो वाले तुम्हारे नाम के अब दो देखो, फंक्शंस ये आउटपुट दे रहे हैं तो तुम दूसरा क्यों दोगे? दो अब गलत आउटपुट देने लगा। डिफरेंस समझ में आया क्या? You are thinking this code is good to hear, which will force everyone. No, brother. This is called reference. या मैं बोलूँ मेमोरी रेफरेंस। अब या इसको पॉइंटर भी कहते हैं। पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है तुमने सी में पढ़ा होगा, पॉइंटर की दो वेरिएबल एक ही मेमोरी को पॉइंट करें, राइट? तो चीजें जब कोई वेरिएबल बनाया और तुमने उसको वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया तो वो वेरिएबल, सिंस मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, नेम ऑफ वेरिएबल से, नेम ऑफ वेरिएबल और स्कोप ऑफ वेरिएबल दोनों ग्लोबल स्कोप में है। तो एक ही मेमोरी पे गए और एक ही मेमोरी पे जाके दोनों का नाम देखा गया। तो जो लेटर इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे एक इम्प्लीमेंटेशन तुमने यहाँ दी गेट फुल नेम की, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन तुमने यहाँ की, तो यहाँ आने पे ये इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है होइस्टिंग। जावा स्क्रिप्ट में जितने भी ये फंक्शन डेफिनेशंस होते हैं ना, ये होइस्ट हो जाते हैं। होइस्ट मतलब ये आपके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, राइट? तो इस वजह से जब ये कोड कंसोल डॉट लॉग चलना शुरू किया ना, तो सबके सब जो थे वो लेटर वाला, जो लास्ट वाला था, ये लास्ट वाला, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होल्ड कर रहे थे। दैट इज वाई ओनली दिस इम्प्लीमेंटेशन वाज वर्किंग। अब ये होइस्टिंग है, ये हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। ये एक क्वर्क है जावास्क्रिप्ट का, कोई फीचर नहीं है। ये गलती हुई थी डेवलपर्स के साथ एंड दे क्रिएटेड दिस बग, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो वो till then इतना काम होने के the बाद thing which मतलब जो is वो left होता for है उसके today's बाद session जो is फंक्शन कॉल होता callback. Okay, so what is a callback? Yeah, sorry. और कॉल बैक क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट है, कोई फीचर नहीं है। मतलब लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया। तो वी कैन पास अ फंक्शन as an argument to another function, right? So let's say till then मैं इसे यहाँ तक वो करता हूँ, कमांड कर देता हूँ so that doesn't work. Let's say my job hypothetical situation ये है, सिनेरियो मतलब आपका ये है कि I am a function which cleans the room and then cook the lunch, ठीक है, or prepare the lunch to be more precise. ये सिनेरियो. So how would I write the function? Function can be clean room, right? And then tell me what to do after this. वो नेम ऑफ द फंक्शन देखो, मतलब वेरिएबल नेमिंग देखो। जब आप अच्छे डेवलपर बनोगे ना, तो यू विल ऑलवेज फोकस ऑन नेमिंग कन्वेंशन। Just clean the room and then tell, after cleaning the room, let's say this is a robot, you just ask the robot to clean the room, right? And then after cleaning, this robot is asking, just tell me what to do after this. Okay, so let's say इसने it just did something, right? So मैं यहाँ पे थोड़ी fancy stuff में कुछ print कर देता हूँ, nothing but I have cleaned the room, right? And then I am just calling what you have given. Okay,
So okay, now if I just call the function clean room, what will happen? इतने पोर्शन को बताओ, what will happen? Just to be more precise, I'll be saying, क्योंकि तुम सब में तो शपथ ले रखी, you guys will never speak. So just to be more precise, will it give an error or not? Yes or no? +1 or -1? Okay. Let's see. Yes, it will. क्योंकि undefined cannot be called, and since you have invoked this function here, and JavaScript does not know whether this is a function, that's why you got this type error, because it never thought that this is a function, right? So in this case now, you will have to pass some other function. Just a minute. Okay, so let me create another function which prepares the lunch, right? And I'm be consoling that fancy stuff again. Okay. Yes. See. So now if I run this code, what will happen is, let me clear it out. I have cleaned the room and then I have prepared the lunch. So now what is this? This is called a callback, that prepare the lunch method, because initially you had one method, clean the room, and after that you said to that method, buddy, after finishing all your work, please call this function back. That is why I am giving you a callback, right? So callback is a function which we pass to another function as argument, and that function calls it with or with or without some new argument. With or without some new argument, ये भी हम समझते हैं कैसे. तो callback is nothing but a function. तो function को हम अगर किसी दूसरे function को pass कर देंगे तो that will be considered as a callback because that function is calling it back. अब let's say prepare the lunch for how many folks, कितने लोगों के लिए, right? By default it will, देखो अभी यहाँ पे ऑप्शनल आर्गुमेंट हो गया, नहीं दोगे तो भी चलेगा. And then clean the room was also taking clean the room. What can be the cleaning the room? Should I mop it? पोछा भी लगाना चाहिए. By default, let's say it is false. Let's do not say. By default, it will be. Doesn't matter, right? वैसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि कॉल बैक आपके राइट में होते हैं, तो क्लीन द रूम में हम ये नहीं यूज करेंगे. मतलब आपको हमेशा राइट में आर्गुमेंट लिस्ट में जो राइट मोस्ट होगा वो आपके कॉल बैक्स होंगे. मतलब दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस. इट रियली डजंट मैटर, आप कहीं भी दे दो कॉल तो होगा, बट ये दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट? आपको हमेशा राइट में लिखनी चाहिए. तो लेट्स से क्लीन द रूम, क्लीन रूम टाइम, लेट्स
say what time you want at, यहाँ मैं concatenate कर देता हूँ वो वेरिएबल, ठीक है। अब लेट्स से 4 PM मैंने ये भेज दिया, अभी देखो, एंड देन let's remove it for how many minutes. Again let's say time यहाँ भी ले लेते हैं कि कितने बजे लंच बनाना है, राइट। तो ऑब्वियसली जब 4 PM में where यूज करता हूँ बिकॉज आई हैव नॉट where टाइम लेट्स से +2, यहाँ मैं उसको नंबर ही कर देता हूँ, ठीक है। Let's say 2 PM. I think this is a mota thing, not very much. I mean, just understand the concept. Don't focus on the data because it is not real one, right? Let's say you took the cleaning room process took 2 hours, right? And then it will tell at what time the room got cleaned. So room got, अगर 2 घंटे लगते हैं तो room got cleaned at this time. So yes, okay. By default 2 तो ये चल ही रहा है, परफेक्ट। इस तरीके से कर सकते हैं। अभी सी फिर लंच एट, मैं यहाँ पे इसको भी असाइन कर देता हूँ। सी okay, sorry, my bad. This would be again time, not room got cleaned. See, so callback can also be called with or without some new argument. जैसे मैंने तुम्हें कॉलबैक क्यों दिया, मैं इस फंक्शन को अगर मैं तुम्हें कॉलबैक नहीं देता तो मैं कुछ ऐसा भी तो कर सकता था कि मैं अपने आप कॉल कर लेता, राइट। किसी के दिमाग में ये आया? एटलीस्ट अभी शिवांश तुम तो बोलो, राइट, पीपल आर नॉट गोना स्पीक। ऐसे भी तो कर सकते थे हम सीक्वेंस में, क्लीन रूम देन प्रिपेयर द लंच, हमने उसे कॉल बैक ही क्यों दिया? ये हिट हो रहा है? रॉन्ग। तो फिर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के इसको ऑप्शनल भी तो बना सकता था, इफ इट इज जरूरी देन प्रिपेयर लंच। सर इसलिए हो रहा है कि मतलब पहले वाला अगर हो रहा है तभी मतलब दूसरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट इज आल्सो रॉन्ग। मैं क्लीन द रूम में कुछ मुझे रिटर्न वैल्यू मिलेगी और मैं उसको चेक कर सकता हूँ, राइट, कि अगर वो रिटर्न ट्रू कर रहा है तो इसका मतलब रूम गॉट क्लीन, अदरवाइज इट डिडंट, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझो, कुछ और चीज है तुम्हारे आंखों के सामने है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें यहां नहीं पता है, वो तुम्हें उसी के स्कोप में पता है। सर टाइम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम 2 से। Yes, almost, you're almost there. तो there are some implementation of that function जो कि ये है +2। ये किसको पता है? क्लीनिंग में कितना टाइम लगेगा वो उसी फंक्शन को पता है। आप बाहर से इस फंक्शन के बाहर से देखो, आप इसको एक ब्लॉक समझो, ब्लैक बॉक्स, राइट। फ्रॉम आउटसाइड यू डोंट नो व्हाट इज दिस +2 +3 कितना टाइम लेगा, वो सिर्फ फंक्शन को पता है ना, ये आपको नहीं बता रहा है। तो ऐसी कितनी बार ऐसी डिटेल्स होती हैं जो रन टाइम में उसी फंक्शन में कैलकुलेट होती हैं। मैंने बोला ना, विद और विदाउट सम न्यू आर्गुमेंट, क्योंकि अगर लेट्स से आपको ये डिटेल्स बाहर पता होती तो आप यहीं पे +2 करके भेज देते, लेकिन आपको नहीं पता, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये आपको ये डिटेल्स एब्स्ट्रैक्ट हैं,
आपको नहीं पता और आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। बस क्लीनिंग द रूम क्या करेगा, आप जब उसको कुछ भी करने को दोगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम बता देगा कि भाई वो कितने कब से उसने शुरू किया, उसमें अपना ऐड करके। तो रूम गॉट क्लीन, मतलब रूम इस तब तक क्लीन हो चुका था, आपने 2 बजे दिया तो 4 बजे तक क्लीन हो चुका था, राइट। 2 बजे पे स्टार्टिंग फ्रॉम 2, राइट। 2 से स्टार्ट हुआ एंड देन लंच 4, 4 पे मैंने फिनिश कर दिया। ये हटा दो, ये मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बताया था, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको उसी फंक्शन के अंदर मिलेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉल बैक, कि आप अपने कॉल बैक को, जो ये आपका कॉल बैक है, आप कुछ इंटरमीडिएट वेरिएबल्स के साथ उन कॉल बैक को कॉल करेंगे जो कि उसी फंक्शन के अंदर है, वो बाहर नहीं है, राइट। है ना। सो ठीक है। सो ये कॉल बैक उस वेरिएबल से कॉल हुआ, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉल बैक, दिस इज व्हाई पीपल मेक कॉल बैक। डज इट मेक सेंस? तो वो सीक्वेंस वगैरह तो ठीक है, लेकिन वो तुम बाहर से कर ले जाओगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटरनली उस फंक्शन में ही मिलेंगी, तो वो आपको ये भी करना है। लेकिन सीक्वेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ये हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रॉमिस के साथ कॉल बैक करेंगे, क्योंकि जब आपका कोड असिंक चलता है तब आपको सीक्वेंस भी मैटर करता है। ये कोड सब सिंक्रोनस कोड है, राइट, वन आफ्टर अनदर चल रहा है, तो आपको सीक्वेंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये असिंक कोड होता तब आपका सीक्वेंस भी मैटर करता, तो सीक्वेंस भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसे हम कॉल बैक की तरह यूज कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? एटलीस्ट सबके सब +1 तो कर दो। ओके विशाल, सो कॉल बैक और दोज फंक्शंस कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कॉल बैक एक कॉन्सेप्ट है, राइट। कि लेट्स से आपको एक फंक्शन है, आप किसी दूसरे फंक्शन को में आर्गुमेंट की तरह पास कर रहे हो, प्लस वो जो फंक्शन है वो इंटरनली उस फंक्शन की चॉइस है कि उसे ताकि आप यूज कर सको। हम इसका एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना, ये तो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया आपके लिए कि जस्ट क्लीन द रूम एंड प्रिपेयर द लंच, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक के बाद दूसरा काम हो रहा है, प्लस कब लंच प्रिपेयर होगा उसके लिए क्लीनिंग द रूम के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो यूज होनी है। जैसे कि क्लीनिंग द रूम कब खत्म हुआ, तो अगर लेट से 2 घंटे लगते हैं तो जो आपने टाइम दिया था स्टार्टिंग टाइम, उसमें से 2 घंटे ऐड करके मैंने लंच प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द कॉल बैक। अभी क्लियर है विशाल, शुड आई रिपीट अगेन? आपने जो कितने भी कोड्स किए ना ओके JSP पे, गुड, उसका टेक्स्ट फाइल कॉल बैक क्लियर है। और हमने क्या क्लियर कर लिया, ऑप्शनल आर्गुमेंट हमने पढ़ ही लिया, एंड एनोनिमस फंक्शन हमने कवर ही कर लिया, राइट। आई थिंक वी कवर्ड एवरी कमेंट। सॉरी, I'll do something, don't worry, you will get it but not today, maybe later. हाँ ओके, मैं कोड ही एक्सप्लेन करता हूँ, विशाल नीड्स कोड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो आई यहाँ पे 2 फंक्शन मैंने बनाए थे, राइट। क्लीन द रूम, क्लीनिंग द रूम का फंक्शन जो कि 2 आर्गुमेंट लेता है कि किस स्टार्ट टाइम क्या है उसका, और क्लीन रूम एक ऐसा फंक्शन है जो ये फीचर देता है कि आप उसको कॉल बैक दे सकते हो, मतलब यू कैन टेल द फंक्शन व्हाट टू डू आफ्टर दिस। हमने बोला भाई यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग लंच एट 2, sorry, cleaning the room at 2 and then prepare the lunch, that is your task. It said okay fine,
अब जैसे ही हमारा सीक्वेंस एग्जीक्यूशन शुरू होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा, राइट? टाइम उसको मिल गया, स्टार्ट टाइम उसने शुरू कर दिया, टू पे उसने काम शुरू कर दिया, और लेट से उसने 2 घंटे लिए, राइट? दैट्स व्हाई 2 + 2 यहाँ पे 2 बजे शुरू हुआ और 4 बज गए, राइट? देन जैसे ही 4 बजे मैंने इस वेरिएबल को, जो कि एक फंक्शन टाइप का है, अगर ये फंक्शन टाइप का नहीं होगा तो टाइप एरर आएगा, राइट? उसको मैंने यहाँ पे इन्वोक कर दिया एक नए वेरिएबल के साथ, जो मतलब एज एन आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया, और वो आर्गुमेंट यहाँ रिसीव हो गया। अब ये ऑप्शनल पैरामीटर है, तो ये अगर वो दे रहा है तो ठीक है। लेट्स से उसने बोला कि मैंने 3 लोगों के लिए खाना बनाया, राइट? और मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ कि कितने लोगों को खाना बनाया इसने। फॉर हाउ मेनी फोक्स, किसने बनाया? ठीक है, ये देखो 3। अगर हम 3 नहीं देते, अगर हम यहाँ कॉल नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है, तो 2 के लिए तो बनाएगा ही बनाएगा, राइट? तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ, लेट्स से तुम्हें ये फंक्शन कभी खुद से भी कॉल करने की जरूरत पड़े, मतलब ये तो ठीक है, क्लीन द रूम हो गया। लेट्स से कोई और काम है कि एक तो क्लीन द रूम को तुम्हें देना था, एक लेट्स से एक और फंक्शन है, वेलकम गेस्ट, राइट? एक फंक्शन और है, सेम कॉन्सेप्ट, वेलकम गेस्ट, गेस्ट आए तो राइट, यहाँ पे तुम लिख सकते हो आई एम वेलकमिंग गेस्ट, आई एम लाइक वेलकमिंग, आई मीन डूइंग समथिंग, राइट? शांत हो जाओ जैकी। Okay, I am welcoming all the guests, right? And then after, let me know what else I can do for them. ये मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के लिए समझ रहा हूँ, तो हम उसको बता रहे हैं, ठीक है? और अगेन it will do what? Time, let's say some time, let's say 3, maybe it's like 3 बजे गेस्ट आने वाले थे, and then prepare the lunch, right? How many folks? Let's say 5, क्योंकि जितने भी गेस्ट आए तुमने उतने बना दिए। लेट्स से यहाँ पे मैंने गेस्ट काउंट भी ले लिया था, तो वो गेस्ट काउंट बदल दिया, ये ऐसे हार्ड कोड नहीं करते, ठीक है? गेस्ट काउंट जितने भी आए थे उनसे +1 करके खाना बना दो। अब ये लॉजिक है, ये मैंने लॉजिक इस फंक्शन के अंदर इनकैप्सुलेट कर रखा है। अब मेरे दो हो सकते हैं, एक तो जब एक ये रूल बनाया हमने कि जब भी क्लीनिंग रूम होगी तब हम लंच प्रिपेयर कराएंगे, राइट? और एक ये भी रूल होगा कि जब गेस्ट आएंगे तो हम गेस्ट से एक जन के ज्यादा का खाना भी बनवाएंगे, विच मेक सेंस। तो देखो, प्रिपेयर द लंच, राइट? अगेन सी, something is off. Let me know what else is not a function. Okay, sorry, guest count 5. I forgot. See, ये 2 काम किए एक सेट में हमने, यहाँ क्लीन रूम किया, लंच प्रिपरेशन की, फिर वेलकम भी गेस्ट किया और लंच प्रिपरेशन की। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं देते हैं, जैसे लेट्स से यहाँ से हम हटा देते हैं, तो ये 2 लोग का खाना बनाएगा। लेट्स से यू गॉट अ मेड व्हिच डज दिस जॉब, देयर इज अ मेड who prepares who cleans the room and then prepares the lunch, but whenever there's some guest, वो गेस्ट से एक जन का ज्यादा खाना बनाता है, बिकॉज यू आर ऑल्सो देयर, राइट? लेट्स से 5 गेस्ट आएंगे तो आपको भी तो खाना चाहिए। So this is just concept. Try to understand कि ये उसका internal logic है। आपने उसके internal logic को क्या किया कि मैंने बोला कि भाई prepare lunch करना है, अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 2 का खाना बनाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शनल आर्गुमेंट का मतलब समझ में आया होगा आपको कि ऑप्शनल आर्गुमेंट्स आर समथिंग
विच मतलब कि जो डिफॉल्ट काम करना है वो आप करा सकते हो ऑप्शनल आर्गुमेंट से, राइट? अभी ये क्लियर है कि देखो अगर मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया होता, लेट से मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट नहीं देता तो मुझे बार बार यहाँ 2 भेजना पड़ता। अगर मैं लेट से यहाँ से हटा दूं ये वाला काम, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मुझे या तो यहाँ पे 2 ऐसे भेजना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं ना, मुझे तो रोज ही से खाना बनवाना है, मतलब क्लीनिंग रूम मल्टीपल टाइम्स करना है, तो मैं बाय डिफॉल्ट उसे बोलूंगा कि भाई प्रिपेयर द लंच फॉर 2 पर्सन्स। तो इसी वजह मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट बनाता हूँ। तो why people make optional argument? Because they want some default work to be done every time. There are some default value. So for default things we use, बहुत बड़ा statement है ये कि for default values use optional argument. Right? Something is wrong. Whatever. So this is a very big statement, right? Anything else? कोई और question? Hello. Okay, last. I think so. We can close the session if no one has any question. Session में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आई? Any point? Because I want this session to be like complete. And this is the time you can ask. हमने क्या क्या समझा आज? हमने we talked about callbacks, anonymous function, optional argument. तो optional argument कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत ही important feature है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑप्शनल आर्गुमेंट हम मेथड ओवरलोडिंग के जैसे भी यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना, वी विल डिस्कस दैट टाइम, राइट? तो आई थिंक वी हैव कवर्ड लॉट टुडे। hash own property, okay. I think he is still not clear with hash own property. तुम थोड़ा सा ये पढ़ना, हैश ओन प्रॉपर्टी क्या होता है, तब मैं तुम्हें एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो मैं ना इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। सी दिस, ये जो 012 है ना, ये इसका हमने जैसे ही पीपल, ये जो पीपल है ये बनाया, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। 0 पे राम है, की वैल्यू पेयर की तरह से, राइट? अच्छा ये दिस क्या है? ओके विशाल, दिस को ना अभी छोड़ दो, वी विल स्टडी दिस व्हेन वी गो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, सॉरी। अदरवाइज ये बहुत लाइक ये इसके लिए ना मैं प्लेंटी ऑफ टाइम दूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनीथिंग एल्स? No, sir. Okay, so we can close the session then, right? आपके पास अभी मैकेनिकल की बोर्ड है क्या? शिवांश, अनुराग, अतुल, कृति, श्वेता, विशाल, एनी पॉइंट? एक बार जाके ना सारे टॉपिक रिवाइज करना, अदरवाइज you will forget it. सीजर वाला कीज। Okay, this is very important to do. नहीं ये मैक है, क्यों तुम्हें आवाज से लगाया सर? नहीं ब्रदर, ये मैक का मैक ही है, तो मैं उसी को। हाँ
अरे इसकी बहुत फ्लैट कीज होती हैं, तो जब आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो इट साउंड्स लाइक दैट। तो कि उससे याद आया मुझे, सॉरी, एक लास्ट चीज शेयर करनी थी। इस पे जाओ, ठीक ये है, व्हाट्सएप और वाले जो अपनी नॉर्मल टाइपिंग जैसे स्पीड होते बढ़ाओ। हैं, टाइपिंग वाला वो हो जाता है, स्टार्ट 10 गिविंग फिंगर दिस हो जाती टेस्ट। है। इससे एंड रोज ये रोज बाकी सब करना जो शुरू करो, एडिशन होता बिना है देखे। उसमें शुरू में जैसे बहुत कि मुश्किल लगेगा। सेमीकोलन सेमीकोलन एक डेवलपर के लिए 45 इज फाइन, क्योंकि आप ना वैसे भी ये कम करते हो। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, वो आदत हो जाएगी उनकी। बट क्वालिटी की टाइपिंग कर लो। क्वालिटी मतलब दिस ABC अल्फाबेटिकल, द क्वालिटी कीवर्ड। ओके, चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट वीकेंड। मे बी 5-6 ही आएंगे नेक्स्ट, तो क्योंकि हम डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। बट आई होप कुछ लोग हैं जो आर स्टिल विद मी, एंड आई होप दीज पीपल शुड स्टे, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू बिकम a fantastic coder, and once you enjoy coding ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना अलग मैजिकल काम करते हो, right? Like being a coder is an attitude, not a skill, I say. वैसे 3 So तो सेकंड ईयर के ही है। I don't know why people don't enjoy coding, being from CSE background. Like we are अभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कितने लोग होंगे? 200 नहीं, 150 तो होंगे, और जिसमें से सिर्फ 9 आते हैं, 8-10, 9-10, 9-10। Like I'm very much disappointed कि I don't know why people are not learning it. हाँ, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में होता और मुझे ऐसे कोई सिखा रहा होता जावास्क्रिप्ट ना, मैं तो बोलता तुम ही माता पिता तुम ही हो, बस सिखा दो तुम मुझे जावास्क्रिप्ट। क्योंकि पता है, जो मेरे दोस्त ज्वाइन करते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कई सालों से कि शुभांशु जैसे ही टाइम मिले ना मुझे सिखाओ जावास्क्रिप्ट। और आई एम लाइक कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी इसलिए मैं उनको भी बुलाता रहता हूँ कि जब भी उनको टाइम लगे वो आते हैं। सोचो, वो जो 2-2 साल 3-3 साल जॉब कर रहे हैं, जो पर्सन ज्वाइन करते हैं, किसी का 5 लाख 6 लाख 8 लाख का पैकेज है, 9 लाख का, वो बोल रहे हैं जावास्क्रिप्ट सिखाओ, और उनको आने के बाद उनको नई चीज सीखने को मिल रही है। तो यू गाइस कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना बड़ा जंप मिल रहा है फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। समथिंग भी नहीं है, मतलब अगर जितना मैंने तुम्हें बताया ना, वो मेरी 4 साल की लर्निंग है, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ। एक कोड को समझने के लिए कभी कभी मुझे हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन भी लगे, क्योंकि हर चीज यूट्यूब से आप नहीं समझ सकते, राइट? और मैं तुम्हें वो 2-2, 5-5 मिनट में बता रहा हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज करना चाहिए। ये एक्सपीरियंस से आता है कि कहाँ कहाँ हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है, कहाँ लॉजिकल। ऑप्शनल पैरामीटर का ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर समझ में आया, यूसेज क्या है? वो डिफॉल्ट वैल्यूज। आज का जो ये मैंने सिनेरियो बनाया है ना, ये सिनेरियो बहुत आसान, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए कि कोड में ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है। तो सर ये वो सारी, जब कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं तो प्रॉप्स पास करते हैं तो ऐसे ही रहता है। हाँ वो कर सकते हो, उसके भी कर सकते हैं। तो देखेंगे, अगर जब तक आई थिंक 3